All right, good morning, all of you. How are you doing? I hope you all are doing well at your places. So, today we are going to start with our new topic statistics. Okay, which chapter? Chapter number 14, NCERT class 10 statistics, right? Okay, now this chapter we are going to talk about, okay, statistics. We have studied statistics in 9th standard also, and in 10th standard what are we going to talk about is about measure of central tendency. Now what do you mean by measure of central tendency um, is a value which defines the whole data. Okay, what is central tendency? Central tendency is a value that defines whole data by identifying a central value, a middle value. Okay, middle value at middle position, I must say. हाँ, तो वो होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स हमको जो डेटा दिया हुआ है उसमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना जो कि उस पूरे डेटा को डिफाइन करती हो, है ना. अब इफ यू टॉक अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो हम तीन चीजों की बात करेंगे: मीन, मोड एंड मीडियन. So first topic which I am going to take today is mean. I will explain what do you mean by mean. फिर next topic and how will you calculate mean. What are the methods to calculate mean. Similarly then next topic which I am going to take is mode and how to, what is the meaning of mode and how to get mode from the given data. And then we will take median. So today I am going to take mean. You remember you have studied average in junior classes. What do you mean by average? Average is what? Sum of observations divided by total number of observations. क्या होता है mean और average? If I must say mean और average. अगर मैं average की बात करूँ, for example, एक class A है and this is class B. अगर यहाँ पे 3 students हैं, उनके marks हैं ये, और यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं ये ना. कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है? हाउ वुड यू डिफाइन दैट? बाय फाइंडिंग द एवरेज. यू रिमेंबर, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो हमको क्या मिलेगा? यू विल बी एबल टू फाइंड कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है. यू रिमेंबर दैट कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है. कैसे निकालोगे? एवरेज निकाल के. एवरेज कैसे निकालते हैं? Sum of observations. I'm not going into depth of this. ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अभी जो हम पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. So sum of observations divided by total number of observations. Right? 1, 2, 3. 5 plus 3, 8. 8 plus 4 is what? 12. 12 upon 3, 4. So average score of one student will be 4. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 upon 4, which is 4 2s are 8, 4 5s are 20. So average score of one student will be 2.5. Just look here. Class A में 3 students थे जिनका marks थे 5, 3 and 4. Class B में 4 students थे जिनके marks थे 5, 2, 2, 1. So अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रहा? So we will calculate the average. Average score of one student in class A. कैसे निकालोगे? Sum of the observations divided by total number of observations. कितना आया? It is 12 upon 3 which is 4. And यहाँ पे average score की बात करें तो 5 plus 2 which is 6, 7, 8, 9, 10. 10 upon 4 is what? 2.5. So किसका average score अच्छा है? This is good. This is greater than this. It means class A का performance अच्छा है. ये तो हमने junior classes में पढ़े हैं. यहाँ पे हम मीन पढ़ेंगे और मीन हाउ टू कैलकुलेट मीन. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल. सीधा सीधा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट. ओके, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस करेक्टली. ओके, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ मीन, okay, let's just take
an example. I am taking one example. All right. Okay. So if I talk about, let's say, this is your NCERT example. I am just taking simple example. Marks obtained by students. How many students? 30 students is given to you. These are the 30, and I'm not taking 30 students. I'm taking only 4 students just to explain you. Marks obtained by not 30 students. I'm going to take now number of students. Just look here. I'm just explaining what I'm talking about. Number of students here is 1, 1, 3 and 4. So I am not taking the 30 students here. हमारे example में 30 दिया हुआ है. So just taking this data, है ना? Just taking this data. Marks obtained 10, 20, 36 and 40 and number of students. 10 marks आए एक बच्चे के. देखो इसको समझना बहुत जरूरी है. 20 marks आए हैं 1 student के, 36 marks आए हैं 3 student के and 40 marks आए हैं 4 students के. इसका हमको मीन निकालना है. अब तुम लोगों ने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? यानी एक बच्चे के 10 मार्क्स है, ठीक है, एक बच्चे के 20 मार्क्स है, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स के 36 मार्क्स है, तो आप 36 प्लस 36 प्लस 36 ऐसे करने वाले हो, और 40 के है तो 4 बार. लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. हमको पता है 36 को 3 बार आप ऐड कर रहे हो, इससे बेटर है आप 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने मार्क्स की बात करी तो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 36, यानी 36 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार. तो 3 इसकी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ 36 इज 3. 40 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4, यानी 40 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4. 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 एंड 20 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1. Frequency is number of times a particular observation repeats itself. What is frequency? Frequency is number of times a particular observation repeats itself. देखो, अगर मैं बात करूं, मेरा कुछ डेटा है ये, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5. 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 3 की 1 है, 4 की 1 है. It is like this, है ना? Now just look here. मैंने तुम लोगों को बोला बेटा हमने तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने कितने बच्चों के मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया? 4 + 3 7 8 9, यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे हमारे पास? 9. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको डिवाइड करेंगे किससे? 9 से. ऐसा करते थे हम, बट अब हम ये नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? हमारा 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 10 इंटू मतलब 10 इंटू 1. सो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ कि जब आपको दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन जिसको हम डिनोट करते हैं xi, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करेंगे fi. अब मीन निकालने का ये फॉर्मूला होगा. मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. अब सिग्मा क्या है? सिग्मा मीन्स सम. सिग्मा जस्ट मीन्स सम. अब किसका सम? जस्ट लुक हियर. सबसे पहले सम किसका? fi xi का. fi xi मीन्स व्हाट? fi इंटू xi. fi इंटू xi. इसका क्या मतलब है? अगर मैं i को 1 लूं तो f1 इंटू x1 10 इंटू 1. ये मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ? fi xi. f को और x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. अगर f1 x1, f2 x2, f3 x3, f4 x4, इट्स लाइक दिस. मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 108, 40 इंटू 4 160. सो दिस इज fi xi. ओके, लेकिन हमारा फॉर्मूला मीन को हम x बार से भी डिनोट करते हैं. ओके, मीन वी डिनोट बाय x बार ऑल्सो. सिग्मा हमने लगाया यहाँ पे. सिग्मास fi xi मीन्स f इंटू x, फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई विथ इट्स फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई विथ इट्स फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 36, उसकी फ्रीक्वेंसी 3. तो fi xi मीन्स आप
ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है तो 10 into 1। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि 10 हमारा एक ही बार आएगा, एक ही बच्चे का मार्क्स है 10, तो जब हम डेटा की बात करेंगे तो 10 एक ही बार आया। 36 3 बार आया, 36 3 बार ऐड करो, इससे बेटर है 36 into 3 कर दो, राइट। नाउ हमने यहाँ पे ये लगा दिया सिग्मा। सिग्मा स्टैंड्स फॉर इन सब का सम, जो हमने FI/XI निकाला है इसका सम, which is going to be what? 8 6 7 8 9 298. Just look here, 8 6 7 8 9 298 सिग्मा FI/XI। यानी हमारा सिग्मा FI/XI क्या है? सम ऑफ ऑल द f into x वैल्यूज, fx की जो वैल्यूज है उनका सम सिग्मा FI। नाउ अगेन सिग्मा FI, सिग्मा सम किसका? फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसी 1 + 1 2 2 + 3 5 5 + 4 9, अगेन 2 3 4 5 एंड देन 4 9, ठीक है। अब सिग्मा FI/XI इज 298 एंड सिग्मा FI इज व्हाट? 9। इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन। आई होप एवरीबॉडी इज वेरी मच क्लियर विद दिस। मीन इज व्हाट? सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। अब एक और एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग, दिस इज वेरी स्कोरिंग चैप्टर क्लास, वेरी स्कोरिंग। इसमें ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है विच यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, है ना। अब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर आई एम टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन आई एम टेकिंग। Let's say I'll discuss 3 methods to find mean. Direct method, okay, then we have assume mean method and then we have step deviation method। 3 methods हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो जस्ट लुक हियर, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, दिस इज नंबर ऑफ प्लांट्स। I'll just explain what is the question saying. Number of plants and then number of houses. They are talking about number of plants and number of houses. 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा मतलब क्लासेस में डिवाइडेड है डेटा को। अभी समझा रही हूँ इसका क्या मतलब है। Here we have 1 2 1 5 6 2 3। कौन सा मेथड बता रही हूँ? डायरेक्ट मेथड। विच मेथड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट? डायरेक्ट मेथड, विच इज x बार मीन्स मीन इज फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ? प्रॉब्लम है कि ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2 का क्या मतलब है? मतलब I am just explaining question first. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. देखो 0 to 2 plants का मतलब है 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू, मीन्स 0 will be included but 2 will not be included। मतलब अगर आप यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो 0 प्लांट 1 प्लांट, ओके, 1.5 प्लांट हो नहीं सकता, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग 1.5, लेस देन 2 वैल्यूज वी विल टेक। यानी कितने हाउसेज है जिसमें 2 से कम प्लांट्स है? या तो है ही नहीं, 0 नेगेटिव नहीं हो सकते प्लांट्स, राइट। 0 से लेकर 2 मतलब या तो जिसके प्लांट है ही नहीं या फिर जिसके 1 प्लांट है। कितनी फैमिलीज है? 1। 2 to 4 का मतलब है वो फैमिलीज जिनके पास या तो 2 प्लांट्स है या फिर 3 प्लांट्स है। देखो यहाँ पे 4 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ 4 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा तो 4 यहाँ आएगा। 2 to 4 का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 4। 4 को इंक्लूड नहीं करते, 4 से छोटी वैल्यूज इस वाले क्लास इंटरवल में आएंगी, है ना। तो आई थिंक आपको समझ आया क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको डेटा दिया हुआ है कि कितनी हाउसेज है जिसमें 0 to 2 प्लांट्स है, कितने हाउसेज है जिसमें 2 to 4 प्लांट्स है, यानी ये तो फ्रीक्वेंसी है हमारी। अब मैंने तुमको फॉर्मूला बताया FI/XI। अभी XI कहाँ से आएगा? फ्रीक्वेंसी तो है, यहाँ तो क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल है मतलब ग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा में सबसे पहले आपको XI निकालना पड़ेगा। XI, जस्ट लुक हियर।
xi, how do you calculate xi? Xi is upper limit plus lower limit divided by 2. Middle value of the class interval we are going to talk about. यानी जब हमको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट xi को हम बोलते हैं क्लास मार्क्स. क्या बोलते हैं? क्लास मार्क्स. जब क्लास की बात हो रही है, अदरवाइज तो हमें जो डेटा दिया हुआ होता, अगर हमें डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई होती तो हम डायरेक्ट सिग्मा एफ xi अपॉन सिग्मा एफ करते, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ था. लेकिन यहाँ पे क्लासेस है तो हमें क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे. xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 2 अपॉन 2. 2 अपॉन 2 इज 1. यहाँ पे 2 प्लस 4 6. आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. ओके, 2 प्लस 4 6. 6 अपॉन 2 इज व्हाट? 3. अंडरस्टूड? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लास मार्क्स आप कैसे निकाल रहे हो? जस्ट लुक, आई एम राइटिंग हियर क्लास मार्क्स इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. राइट? Class marks, how do we calculate? We calculate class marks upper limit plus lower limit divided by 2. Right? Now, यहाँ पे आएगा हमारा class marks 5. देखो 6 plus 4 10. 10 divided by 2 is 5. 8 plus 6 14. 14 divided by 2 is 7. 8 plus 10 18. 9. Then we will get 11. And then we will get 13. So हमारे class marks हमको क्या मिले बेटा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13. यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ 1 एंड 3 सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था. अब हमको xi भी मिल गया, हमको fi भी मिल गया. हमको फॉर्मूला लगाना है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा मीन्स सम. किसका सम? fi xi का मतलब पहले मैं fi xi तो निकालूं. तो fi xi क्या है? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ क्लास मार्क्स, है ना? विथ its class marks, right? 1 into 1 is 1, 2 into 3 6, 5 into 1 5, 7 into 5 35. क्या कर रही हूँ? 7 जो हमारा क्लास मार्क है उसके रिस्पेक्ट में द फ्रीक्वेंसी इज 5. विथ रिस्पेक्ट टू क्लास मार्क 7 आर फ्रीक्वेंसी इज 5, तो मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 एंड 13 3 जा 39. ये हमको मिला fi xi. अभी सिग्मा नहीं मिला है, fi xi की वैल्यू मिली है. नाउ सो वी नीड टू फाइंड सिग्मा fi xi, राइट? ओके, नाउ सिग्मा इज व्हाट? सिग्मा इज सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ fi xi. fi xi का सम सिग्मा fi xi क्या होगा? इन fi xi प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स का जो सम आएगा, that is going to be our sigma fi xi, which is going to be 162. आप इनको ऐड करोगे 6 plus 1 7. okay, 7 plus 5 7 plus 4 is 11. 11 plus 5 16. 17 18. 2 carry over 1 4 5 9 10 11 and 3. okay, so we'll get what? Sigma fi xi is going to be what? It is going to be 162. Now we need to find its mean. Now sigma fi is what? Sigma fi is, I am just rubbing this, class marks is upper limit. अगर मैं इसके क्लास मार्क्स की बात करूं तो अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 6 अपॉन 2. 8 प्लस 6 अपॉन 2. राइट? ओके, अब हमको सिग्मा fi xi मिल गया. सिग्मा fi का क्या मतलब है? सिग्मा fi का मतलब है हमको सम करना है किसका? फ्रीक्वेंसीज का, विच इज गोइंग टू बी 2 plus 1 3, 4 5 9, 9 plus 6 15, 15 plus 5 20. यानी हमको सिग्मा fi, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, they were talking about 20 हाउसेस. टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 20 ही आएगा बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट 20 हाउसेस. नाउ सिग्मा fi xi की वैल्यू 162 है और सिग्मा fi की वैल्यू 20 है. When you will solve, you will get 8.1. 2 8 16, 2 2, so 8.1. So हमारा मीन क्या हो जाएगा? 8.1. I hope this is very much clear to you. ये कौन सा मेथड है? This is our direct method. Again, I am explaining you. आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. 0 plus 2 upon 2 which is 1. 2 plus 4 6. 6 divided by 2 is 3. 4 plus 6 10. देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन
2। ये क्या होते हैं? क्लास मार्क्स। 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 8 + 6 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 8 + 10 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 is 9, 10 + 12 is 22, 22 divided by 2 is 11, and 12 + 14 is what? 26 divided by 2 is what? 13. फिर हमने क्या किया? f into x, fi into xi. Why? Because हमारा फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, सम किसका? सम f into x का. So just look here, fi xi means what? You need to multiply class marks with its frequency. ऐसा नहीं कि 1 को आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, जो क्लास मार्क्स है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको लेनी है. 1 into 1 is 1, 2 into 3 6, 5 into 1 5, 7 into 5. So that's how we will find out fi xi. अब हमारे फॉर्मूले में सिग्मा fi xi है. सिग्मा means what? सम फ्रीक्वेंसीज का सम. So this is going to be what? Sum of all the frequencies you will get 162. Okay, you just check calculations again. Okay, I'm just explaining you the method. So this is going to be sigma fi xi, which is 162, then divided by sigma fi frequencies का sum, which is 20. आप इसको कैलकुलेट करोगे, you'll get the value by of mean 8.1. मीन क्या है हमारा? 8.1. Now ये था हमारा डायरेक्ट मेथड. कैलकुलेशन को थोड़ा सा और छोटा करने के लिए हम दूसरा मेथड करेंगे, विच इज अज्यूम्ड मीन मेथड. तो मैं इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करो, आपका आंसर सेम नहीं आएगा. अगर आप इसको अज्यूम मीन से भी अभी समझा रही हूँ क्या, अगर आप इसको अज्यूम मीन मेथड से करते तो भी आंसर 8.1 ही आता. बट आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन टू एक्सप्लेन अज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, सो नाउ let's just take another example. Okay, let's say I'm talking about this question number 2. Now consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. तो हमको क्या दिया हुआ है? डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स. हाउ मेनी वर्कर्स? 50 वर्कर्स. तो डेली वेजेस क्या है? इट इज इन रुपीज. ओके, 100 to 120. इसका मतलब 100 से लेकर 100 इंक्लूड होगा, लेस देन 120 ये वाला ग्रुप है. देन 120 to 140, देन वी हैव 140 to 160, देन वी हैव 160 to 180, and then we have 180 to 200. ये हो गई हमारी डेली वेजेस. एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज फ्रीक्वेंसी. ऑफ कोर्स, कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस 100 to 120 के बीच में लाई करती है, वो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी. नंबर ऑफ वर्कर्स हमको कितना दिया है? 12, 40. 12 ऐसे वर्कर्स हैं जिनका डेटा इस इंटरवल के बीच में आ रहा है. सो 12 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 to 120. Now 40, 8, 6 and 10. पहला स्टेप, पहले हमको क्या निकालना पड़ता था? देखो, जो पहले स्टेप्स करते थे वो भी करेंगे हम. पहला स्टेप, this method is what I am going to explain. Assumed mean method. कौन सा मेथड है ये? Assumed mean method. क्या होता है assumed mean method में? सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स तो निकालने पड़ेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं. कैसे निकालते थे क्लास मार्क्स? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ऑलराइट, सो क्लास मार्क्स को मैं डिनोट कर रही हूँ एक्साइज से. एक्साइज 100 + 120 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 220. जस्ट लुक हियर, 100 + 120. देखो, 100 + 120 डिवाइडेड बाय 2, which is 220 डिवाइडेड बाय 2, which is 110. अंडरस्टूड? फिर इसका भी हमने क्या निकाला? क्लास मार्क्स. वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 260 अपॉन 2, विच इज 130. लुक हियर, एक चीज नोट करो, यहाँ पे क्लास इंटरवल की विड्थ की बात करेंगे, है ना? 20 है इसकी विड्थ. तो आपकी जो एक्सआई होगा वो भी जो नेक्स्ट एक्सआई होगा वो प्रीवियस से 20 ज्यादा होगा. देखो, क्लास इंटरवल सेम है, इसी केस में ले सकते हो ये, है ना? एंड
इट्स ओके इफ यू आर टेकिंग इट लाइक दैट, दिस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, क्योंकि कई बार डेटा इक्वल विड्थ का नहीं होगा, क्लास इंटरवल विल नॉट बी ऑफ सेम विड्थ, बट इस केस में क्या है 20 हो रहा है, ओके हर बार 20 इज द क्लास विड्थ, है ना, सारी क्लासेस की विड्थ सेम है, तो हमारा डेटा जो हमारा xi है वो भी ऐसे होगा 110 प्लस 20 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170 एंड देन 190. Okay, so we have got the value of xi. I hope this is very much clear to you. Okay, all right. Now next step, ये तो हम पहले भी करते थे, ये तो हम पहले भी करते थे. अब नया क्या है assume mean method में? What are we going to do? We are going to take a value, any value from xi. assume करें, कुछ भी ले सकते हो आप, 110, 130, 150, 170, 190. उसको हमने डिनोट किया ए से, विच इज अज्यूम्ड मीन. क्या बोलेंगे उसको? अज्यूम्ड मीन. फिर हम वैल्यू निकालते हैं डी. डी आई स्टैंड्स फॉर डेविएशन. डेविएशन मीन्स इसका और इसका जो डिफरेंस है, हमारा जो एक्स आई है उन सब का डिफरेंस किससे कितना है, 150 से कितना है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो डी आई इज व्हाट, एक्स आई माइनस ए. डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए. डी आई इज एक्स आई माइनस ए. ये हमने एक वैल्यू अज्यूम की है. देखो वापस बता रही हूँ, एक्स आई मेरा 110 है माइनस ए मैंने अज्यूम किया 150, सो यू विल गेट माइनस 40. नाउ वापस डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए. एक्स आई हमारा सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए 130 है, सो 130 माइनस ए विच इज 150. तो 130 माइनस 150, प्लीज टेक केयर ऑफ द साइन, माइनस 20. 150 माइनस 150 विल बी 0. हमारा xi भी 150 और a भी हमारा 150. Then 170 minus 150 which is 20, and then we have 170. I'm so sorry, 190. xi पहले लिखना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है a की वैल्यू which is 40. तो हमें di की वैल्यू पता चली. ओके, I hope you have understood what I am talking about. di is the deviation or difference of xi and a. xi 110 है, हमने a assume किया है 150. अगेन सेम स्टेप किया मैंने, डेली वेजेस दी हुई थी, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए थे, यानी फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है. सबसे पहले xi निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. xi हमने कैलकुलेट किया. सेकेंड स्टेप, हम इसमें से एक वैल्यू लेते हैं जिसको हम a बोल रहे हैं, अज्यूम्ड मीन, राइट. a हमने निकाल लिया. अब हम डेविएशन निकालेंगे di, किस मतलब डिफरेंस ऑफ xi एंड a. 110 माइनस 150, 130 माइनस 150, 150 माइनस 150, 170 माइनस 190 माइनस 150. ये वैल्यूज हम लिख लेंगे, है ना. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यूज, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है. आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट स्टेप अदरवाइज. ओके, दिस इज माइनस 20, दिस इज 0, then we have 20 and 40. ओके, जब हमारा पहला मेथड था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई कर रहे थे. अब हम सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे. अभी मैं बता रही हूँ, एफ आई डी आई करेंगे. पहले वाले स्टेप में, पहले वाले मेथड में, डायरेक्ट मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे. अब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से, ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी. जस्ट लुक हियर, 12 इंटू माइनस 40 माइनस 480. फ्रीक्वेंसी को करना है, xi को नहीं, पहले f और x मल्टीप्लाई कर रहे थे, f को di से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 14 माइनस 20 इज माइनस 280. 14 2 जा 28, 280. 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 एंड 10 इंटू 40 400. अब देखो, पहले हमारा फॉर्मूला था ये, अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जस्ट लुक हियर, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. जो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो लास्ट में जाके हम ऐड कर रहे हैं. अब क्या कर रहे हैं, एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. पहले फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. अब फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. और जो चीज हमने सब्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको लास्ट में जाके हम ऐड कर रहे हैं. ए मतलब हमने जो सब्ट्रैक्ट किया था, क्या सब्ट्रैक्ट किया था, 150, वो लास्ट में जाके. सो ये हमारा नया फॉर्मूला होगा. दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड. अब सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू देखो, एफ आई डी आई मिला
अगेन फर्स्ट मेथड में fi इंटू xi, सेकेंड जो अज्यूम मीन मेथड है fi इंटू डी आई कर रहे हैं। इससे भी एक छोटा मेथड और है जिसको हम बोलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी करेंगे। ओके, नाउ व्हाट, जस्ट लुक हियर। अब सिग्मा मतलब सम निकालना है fi डी आई का। आप सम निकालोगे कैसे, देखो बेटा -480 और -280, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, यू विल गेट 0, 8 and 8 16, 4 -760 और 120 प्लस 400 विल बी 520। लुक हियर, ये माइनस माइनस प्लस होता है, सो दिस इज -760, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है दोनों, तो 120 प्लस 400 इज व्हाट 520, प्लस माइनस माइनस यानी कि आप -760 और 520 कर लो, so you will get what 0, 6 minus 2 is 4, 7 minus 5 is 2, so -240। हमको क्या मिला, -240। सिग्मा fi क्या मिला, सिग्मा fi di क्या मिला, -240। एंड सिग्मा fi फ्रीक्वेंसीज का सम, देखो यहाँ पे कितने वर्कर्स की बात हो रही थी, डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम 50 ही आएगा। देखो 2 + 4 6 and 8 14 and 6 20, कैरी ओवर 2 3 4 5 यानी 50 है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, A स्टैंड्स फॉर 150, ए हमारा अज्यूम मीन था, हमने xi में से एक वैल्यू ली थी, सिग्मा fi di है मेरा -240 अपॉन सिग्मा fi है मेरा 50। बेटा आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की बजाय पहले इसको कैलकुलेट कर लो, डेसिमल में वैल्यू निकालो, जो आंसर है उसको 150 में ऐड करो। सो जस्ट लुक हियर नाउ, 0 से 0 कैंसिल, you will get 5 4s are 20, 5 8s are 40, so you will get plus minus 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 का 4.8, 150 minus 4.8, 150 minus 4.8 is what 145.2। देखो करके देखो 150, I hope everybody know how to do subtraction of decimals। 4.8 मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, this is 0, 10 minus 8 is 2, 9 minus 4 is 5, so you will get 145.20। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, हमारा मीन हो जाएगा 145.20। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मेथड अगेन। आपको सिर्फ ये वैल्यूज दी हुई थी, सबसे पहले आपने xi क्लास मार्क्स निकाला, जो कि आप पहले भी निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ये निकाला। उसके बाद हमने एक वैल्यू अज्यूम की इसी में से, जिसको हमने बोला a, और फिर हमने डेविएशन निकाला, मतलब डिफरेंस निकाला xi की वैल्यूज का और जो a हमने अज्यूम किया है। 110 minus 150 minus 40, 130 minus 150 minus 20, 150 minus 150 0, 170 minus 150 20, 190 minus 150 is 40। फिर हमारे फॉर्मूले में अर्लियर वी वर यूजिंग fi xi, नाउ वी विल बी यूजिंग fi di। फ्रीक्वेंसी को पहले xi से मल्टीप्लाई करते थे डायरेक्ट मेथड में, अब di से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 into -40 -480, 14 into -20 -280, 8 into 0 0, 6 into 2 120 and 10 into 4 40 is 400। फॉर्मूला हमारा ये था। x बार देखो बहुत इजी है फॉर्मूला लर्न करना, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi फॉर्मूला था, अब हमारा हो जाएगा सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, लेकिन हर बार हमने a को सब्ट्रैक्ट किया है, लास्ट में जाके उसको ऐड कर दो। अंडरस्टूड, हमने वही किया है। तो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, सिग्मा fi di मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड डेविएशन विच इज -240, माइनस साइन है तो आपको लेके चलना है अपॉन सिग्मा fi फ्रीक्वेंसीज का सम 50। इसको सॉल्व किया, देखो माइनस का साइन था, सो -4.8, 150 minus 4.8 is going to be what? It is going to be 145.20, which is going to be our mean. Okay. So आपने दो मेथड्स पढ़े, डायरेक्ट मेथड एंड assumed mean method. So now you need to do questions, like you can go for question number 3 and 4. Fifth question you don't need to do it now because data is not continuous, वो मैं next class में discuss करूँगी, and next class में I'm going to discuss one more method which is step deviation method। तो आपको ये सारे questions except fifth you need to try these questions using direct method and assumed mean method। So that's it for now. Thank you so much.